webinar. Anybody from the participants? Any aches and pains or some suffering that you want to get rid of? Anybody from the participants, please write in the chat box. कुछ तो problems है, health problems, जिसके लिए आपने ये webinar join किया है. And I'm sure everybody has tried n number of things and without getting any solution. So quickly write down in the chat box, what have you joined the webinar for? What are we here for? Evening 6 o'clock Thursday and Ashtang Chikitsa webinar. Kuch knee pain, frozen shoulder, anything that you would like to talk about. Ramesh sir, Vinod sir, camera on kar le. I would like to speak to somebody across rather than having the black screen. It would be nice to make it an interactive session. Kamala ma'am, Deepa ma'am, please switch on your cameras. I'm waiting for some answers. Shalini Periwal ma'am, camera on kar le. People have joined from all over India and abroad. So I'm sure people have joined in for some purpose. So could you enlighten me what is the purpose of joining the webinar? Yes, Parumita ma'am, can you please tell me what is the problem? Isha ma'am, Mahesh sir. Okay, there comes heel pain. Shoulder cuff rotator tear. That was really technical. Good evening, back pain. Slowly, Asha ma'am with back pain, iPhone, can't walk properly, severe osteoarthritis. So all these things come under neuromuscular health issues. तो अभी आप क्या कर सकते हैं to get rid of this pain? Rheumatoid arthritis. The list goes on bed rest. So we want to come out of the current situation and enjoy life. Nobody wants to be on pills right from the morning till evening. Yes or no? So कितने लोग यहाँ पर solution जानना चाहते हैं? How many people are willing to know about what to do to come out of the situation and are willing to work on themselves? सिर्फ हाँ बोलने से नहीं होगा, आपको अपने शरीर के ऊपर काम करना होगा. अभी तक जो आप कर रहे थे वो एक्सटर्नल मेडिसिन खा रहे हैं. अभी आपको अपने शरीर के ऊपर काम करना होगा so that you can build your own strength. The internal strength needs to be built up so that you come out of your disorder by working on your root cause. Crohn's disease. So how many of us are ready? Ready, but Vinod sir says ready, but. So I don't know what this but is all about. So no ifs and buts. If we are ready, we are ready. Come what may, we have to work on ourselves. So if I have your permission, can I share the screen to share more information about Ashtang Chikitsa? So if I have your permission, I'll share the screen. Okay, thank you so much. Okay, is the screen visible? Yes. Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. जैसा कि कुछ लोगों ने गिनाया, किसी को हील पेन है, किसी को ड्रॉप फुट है, किसी को rheumatic arthritis है. So all these come under the umbrella of neuromusculoskeletal problems. Namaste, I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not found any permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments.
Ashtanga Chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but in Europe and the US as well. So he has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtanga Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness. So profound way of addressing the aspects of a human body. So who is this webinar for? Strange question, right? वेबिनार आखिर है किसके लिए? वेबिनार शायद सभी के लिए होगा, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, बट वेबिनार सबके लिए नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि it is only for people who are looking for some permanent solution and natural solution and are sick and tired of temporary treatments. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their current health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtanga Chikitsa, freedom from pain and medicine. So Swamiji will talk about the Ashtasharir. Now, what do we mean by the Ashtasharir? Ashtasharir का मतलब क्या है? इसके बारे में डिटेल में आप स्वामी जी के वीडियो से समझेंगे. For right now, it's the Srishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti, and the Vikriti Sharir. Now, when we talk about the neuromuscular health issues, we are mainly concerned about the Prakriti and the Vikriti Sharir. So, Prakriti, yani ki, the regenerative factor of our body, Vikriti, yani ki, degenerative factor of our body. तो जब ये imbalances होता है, तब आपको surface होता है pain, inflammation, stiffness, and other problems. So Ashtanga Chikitsa can heal, of course, the list goes on and on, but these are a few common problems that we see often faced by our Ashtanga Chikitsa online participants. So knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issues, slip disc bulge, weak spine, excuse me, spondylitis, frozen shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, nerve issue. Excuse me. Let's hear from Swami Raj Vibhuji how you can come out of your current problems. Thank you so much for listening to me patiently. I will just tell you how we will proceed in the webinar. इसके बाद आप स्वामी जी का recorded video सुनेंगे. Then we will have someone live who will be sharing their journey of Ashtanga Chikitsa and how he or she has benefited by it. Then we will be taking up your questions and Swamiji himself will be joining us live. Of course, the program details will be shared with you about the online therapeutic class. तो देर ना करें, फटाफट लिख डालें आपके problems जो आपको परेशान कर रहे हैं in the chat box, which I myself will be taking up along with your name and number. Thank you so much. And over to Anilji to share the program details. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है.
I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा. उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी. लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो. And he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation? Inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position.
The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtang Chikitsa. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें सर. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस scale में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in Kumbhak Paddhati, in Kumbhak Kalachar or Ayurved Kalachar, in Yoga Kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take an example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things. Manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं. आप लेना नहीं चाहते हो. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more. If you get tired,
अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. Oof. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बंद तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, all the 5 senses, you hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है? तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya.
The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में जॉइंट प्रॉब्लम आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a backrest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, hold your right hand over the top and try to pull it. खींचने की कोशिश करें. Just pull on the left side. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. When you pull, what do you do? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? You hold your breath. Yes or no? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath.
अगर आपको तरीका पता है ना, हाउ टू अलाइन, हाउ यू वांट टू अलाइन योर नेवल, हाउ यू वांट टू अलाइन, हाउ यू कैन अलाइन योर चेस्ट, अगर ये तरीका पता है ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू अलाइन. सो इट नीड्स अ लिटिल कमिटमेंट, एक थोड़ा कमिटेड एटमॉस्फेयर चाहिए होता है उसके लिए. दैट इज व्हाई वी टीच इट इन द क्लास, हम क्लास में सिखाते हैं. द फोर्थ एस्पेक्ट, प्रमाण शरीर, प्रकृति विकृति संख्या प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण मीन्स डेंसिटी, इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी. इसी को धातु भी कहते हैं, वी कॉल इट धातु. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इजंट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. लाइक बोन इज वेरी मच डेंस, हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड. सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन. हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. व्हाट इज डायबिटीज? योर पैनक्रियाज इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. व्हाट इज हाइपोथायराइड? योर थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Or kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there, है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैनॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, isn't it? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. बट सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यू कांट लिफ्ट वेट without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong.
your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is what how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको, तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? इंटरनली. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver, how you can make your liver strong, how you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की मूवमेंट होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement.
वो बिना मूवमेंट के नहीं होगा. ब्लड सर्कुलेशन कैन हैपन विदाउट मूवमेंट बिकॉज देयर इज अ पंपिंग ऑर्गन. एक हार्ट है जो ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है, लिम्फ का कोई सर्कुलेशन नहीं करवा रहा. इट विल ओनली हैपन बाय मूवमेंट ऑफ द बॉडी. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, न्यू सेलुलर फॉर्म, बेटर सेलुलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेलुलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट, कैंसर हैपन्स बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म अष्टांग चिकित्सा में, देयर इज अ पार्ट इन अष्टांग चिकित्सा, देयर इज अ पार्ट कॉल्ड एज अंगन्यास एंड मर्म विन्यास, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. तो function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी: material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वात? मूवमेंट. वात ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So, Vata dosh से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you will get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do Vata Pitta Kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So, neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about? Spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot.
न्यूरोपैथी, है ना, ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. A 64-65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing Kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85%, it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now burst, is now being bursted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But
they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You'll feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organ function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose. In Prana Shakti diagnosis, यही Prana Shakti diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do Prana Shakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंग न्यास.
The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत magical है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गई. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. Just invest in health and you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. I will now call over Asmita Vaidya ma'am to share her journey of Ashtanga Chikitsa. Asmita ma'am, are you able to hear me? Asmita Vaidya ma'am. Yes, ma'am. I can hear you. Okay. Thank you so much for joining us. You can start, Asmita ma'am. Please unmute yourself. You're not unmuted, ma'am. Now try unmuting yourself. Yes, ma'am. Yes. Yes, we can hear you. Good evening and namaskar, everybody. I'm here today to share my experience with the Ashtanga Chikitsa. I completed my course just last week. And before joining Ashtanga Chikitsa, I was suffering from asthma. I was taking medicines. I was taking a pump every day to survive. I used to feel breathlessness. सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी. And after joining this course, since around 1.5 months, I have stopped all my medicines. I don't take any pump. मुझे spondylitis और cervical का भी थोड़ा problem है, तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा relief मिला है pain में, and I am surely going to continue this program even after my course has completed. And I would really like to thank Swami Raj Vibhu and all the teachers for all their support throughout the 10 weeks. And it is an amazing program. And I would be very happy if any one of you would get inspired by my story and join the program. Thank you so much. Namaskar. Thank you so much, Asmita ma'am.
So she joined for her neuromuscular issues, and imagine her asthma has got resolved. That was great, Asmita ma'am. Now I Yes. would like to call upon Kumud ma'am, Kumud Apurva Dutt ma'am, to please tell us her journey of Ashtang Chikitsa and how she got relief from neuromuscular health issues. Kumud ma'am, are you able to hear me? Yes, ma'am. Okay, so we'll just Good put you evening, on everybody. spotlight. Pardon? Can she be put on spotlight, please? She's on Yeah, spotlight. please. Okay. Ma'am, can you switch on your... Okay, your video is on. Okay. Yes, ma'am, you can start. Okay. Yeah. Shall I start, ma'am? Yes, Okay. sure. Good evening, everyone. I am Kumud Dutt here, and I joined this course and practicing it regularly since last 6 weeks. I have completed Pitta and Vata sessions. And earlier my problem was related to the knee pain, back pain, and somewhat related to a vertigo kind of thing. I mean, I could not bend myself at certain point, and I could not even look on this upward. So these are my problems, and these were my problems, and I could not walk for a long. I need to wear a belt and kneecap while walking for a long time. But now, within these 6 weeks, I have removed everything. I can walk properly for about 1 hour, and I can climb the steps nicely without taking any support of a kneecap and a waist belt. And my vertigo has also gone. So these are the wonderful changes I have observed in my health, and I will continue. The main thing is we have to follow the instructions. The team is working hard for us to get us to regenerate our health. So if we follow them step by step and follow each and every instructions, definitely we will get a good result. That is my experience. Thank you so much. Thank you so much, Kumud ma'am, for sharing your experience. Now, we are coming to the much awaited part of the program details. So how many people are ready to know the program details and already inspired by 2 of our participants are willing to know more and join the program? Give me a thumbs up. So just give me 2 minutes and I'll share the screen. Is the screen visible? Yes. Okay, so let us know more about the Ashtang Chikitsa online program details now. Okay. So it's a guided program conducted online by trained Kumbhak mentors. Now, what do we mean by trained Kumbhak mentors? They are not just any yoga people who are coming and teaching. They are actually trained by our Swamiji to take classes and guide the patients in a therapeutic class. So program modules M1, M2, M3. So duration 21 days each. So it comes to 63 days. Program overview, duration is 9 + 1, 10 weeks. 2 live classes per week, 1 learning main class and 1 mentoring or the practice class. So what are the next steps? Pay the program fee, webinar special price, fill the PO forms, login credentials for course access, start your classes with M1, M2, M3. So total classes, 6 classes, 3 learning, 3 mentoring, 21 days. So per week you have to book yourself with Ashtang Chikitsa for just 2 classes. M2 module, 6 classes.
3 learning, 3 mentoring, 21 days. M3 module, 6 classes, 3 learning, 3 mentoring, 21 days. So total number of classes is 18 learning classes plus 1 customization class. Now, what exactly is this customization class? We will be talking about it hereafter. So just wait and I will tell you the details. So engagement is for 10 weeks with Ashtanga Chikitsa. So batch 118 starts on. So you can imagine we have already completed 117 batches. 20th Feb 2023, Monday at 6:30 p.m. So mentor classes for module 1, mentor classes are on Thursdays. Module 2, mentor classes are on Fridays. Module 3, mentor classes are on Saturdays. So what exactly is the class experience like? Live sessions, mentors watch participants, written instructions in English and Hindi, and session recordings. So it is exhaustive. Even if you miss a class, you have your written instructions, you have session recordings, so you have absolutely no excuse for not doing the 3 hours. Extras, mental practices, of course, you have to mentally get ready because you are in some kind of health problems. So mentally, you have to practice unique diet perspective. Mind you, these are diet perspectives. We do not recommend any diet. Knowledge like no other. Simple detox process. The body needs to detox, then only the rejuvenation starts. So yearly expenses, let's look at how much you may be spending to just manage your disease. So doctor fees, 6,000 to 12,000, physiotherapy, 12,000 to 30,000, medicines, 15,000 to 30,000, total of 33 to 72,000 per year. Does that sound too much or too less? Plus side effects of allopathic treatments, which cannot be put in any price. Does everybody agree with me? So before I share the program details, it's very important to know who this program is not for. Just as we said, who this webinar is not for, who this program is not for. It's not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow. हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि हम आपको कल ही रिजल्ट दें. ये सिर्फ आपको एलोपैथी दे सकता है. This is not for those who are not ready to work on their body, as I already told you all in the beginning of the webinar. It's not for those who cannot invest 80 to 90 minutes every day on themselves. This is not for those who are impatient, not for those who are looking for a free treatment or just some tips which are already available in YouTube. So what all you get? Pran Shakti diagnosis for root cause determination. Weekly 1 main class of 60 to 90 minutes. 1 practice class of 60 to 90 minutes. Online course access for 6 months. आपका कोर्स खत्म होने के बाद 9 वीक्स के बाद आपको ऑनलाइन कोर्स एक्सेस मिलता है 6 महीने तक. Videos of all kriyas done in the class. Written instructions in English and Hindi. Private WhatsApp group to ask doubts, questions, 6 days. Individual participant progress tracking feedback. So therapy customization for each participant in the 10th week. So this is the most important part of this program and the uniqueness of this program. We do the Pran Shakti diagnosis done by our Swamiji and customization, because everybody who is suffering with similar problems, for example, knee pain, might not have the problem in the same place. Could it be liver, it could be pancreas, and so on and so forth. So our Swamiji actually gets to the root cause and decides on your customized kumbh. What all you get again? Extended support for 30 days after the program is over.
So Inner Gist, Pranshakti diagnosis for root cause determination, weekly one main class and practice class of 60 to 90 minutes, online course access for 6 months, course dashboard videos and written instruction of all the kriyas done in the class, private WhatsApp group to ask doubts, questions, individual participant progress tracking feedback, therapy customization for each participant in the 10th week, extended support for 30 days after the program is over. Program fee for Ashtang Chikitsa, 14,500. क्या ये ज्यादा लग रहा है? किन किन को ज्यादा लग रहा है? जल्दी से chat box में लिख डालिए. I'll wait till you write in the chat box. How many people feel that the fee is too high for a 9 weeks program? Or some people might feel it's too less. Anybody quickly in the chat box, how many people feel it's too high? Nobody? Okay. I'm still waiting for some people to write high. Okay. One person has written high. The rest feel it's okay, I feel. Very high. It's not high. Okay, high. Okay, so let's just give some good discount since you have come for the webinar. Okay, so the special webinar pricing. What is it? Wow, it's 6,500 only. So how many now feel that the fees is too low? How many feel that it's too low? 14,500, and we have come down to a subsidized fee so that all the participants can take advantage of this fee within 18th February 2023, 12:30 p.m. for a 10 weeks program. So per class comes to 342 only, plus all the 10 benefits. So how to enroll? Pay the program fee, post the payment receipt in the WhatsApp group, fill the participant onboarding form, join the class WhatsApp group, start attending classes to learn Ashtang Chikitsa. Payment methods, we are going to share all this in the chat as well and your webinar groups. So don't worry to write down anything. So Asupati, which needs a mention at your service for 9 weeks. Rachna Shimal Botra, that is me, the program director. Shalini Bhagwat, the class manager. Ashwini Kumar, the manager IT. And our choicest mentors, Ranjana Swain, R.D. Gupta, Soni Chabadia, Aruna Narayan, Meena Rai, Suruchi Goel, Arundhati Degaonkar, Meera Rajan. And our enrollment in charge, Neha Upadhyay, who will be connecting with you henceforth for the enrollments. Anil Chauhan, WhatsApp admin. Himanshu Reddy, the technical guy who does all the backend for your support. And Anita for your personal support, who will always be in touch with you with any kind of problems, whether it is Kriya related or any kind of technical issues. So here I come to the end of my part of sharing the details. Now without delay, I think Swamiji has already joined in. So we will be taking up the questions. Let me put him on spotlight. Thank you so much, Swamiji, for joining in. Namaste. And we will be taking the questions. Just give me 2 minutes. Ji? Okay. Ji? No, we will be taking up the questions right now, and then whoever has raised their hands, they can also ask their question. Not knowing regarding holding breath, etc. So can you please explain? Vinod Shah writes.
So they probably want some knowledge about Kumbhak. So कुंभक is something through which you do any activity. कोई भी काम करते हैं ना तो कुंभक के जरिए ही करते हैं, बिना कुंभक के कर नहीं सकते। तो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो उंगलियों को फंसा लीजिए, क्लैस्प योर फिंगर्स, उंगलियों को फंसा ले, उंगली को। एक्सपेरिमेंट करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। खींचिए, जरा खींचिए इसको, जोर लगाइए, देखिए पीछे सांस रोक रखा है आपने, रोका है कि नहीं? अच्छा, पुश करते हैं, पुश करते हैं, धक्का देते हैं, पुश करते हैं, पुश। एक मुट्ठी बनाइए, दूसरे हथेली को पुश कीजिए, जोर लगाइए, पीछे देखिए क्या सांस रोक रखा आपने। तो बिना सांस रोके कोई एफर्ट नहीं कर सकता। वेट कैसे उठाते हैं आप? वेट, हाउ डू यू लिफ्ट वेट? यू होल्ड योर ब्रेथ। चेयर से भी उठना हो तो आवाज आती है ना, आह, व्हाट डिड यू डू? आपने थोड़ी सांस रोक ली। अच्छा, कोई आपको धक्का दे रहा है, आपको रेजिस्ट करना है, गिरना नहीं है, तो कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे पक्का करेंगे कि नहीं गिरे? आप सांस रोक लेंगे। एक पांव पे खड़े हो जाइए। हाँ, एक पांव पे खड़े हो गए, ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस। हाउ डू यू डू दैट? कैसे करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ। ये आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। पर आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। किसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? इंटरनेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेलीविजन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा? किसी चीज को भी जानने के लिए जो आपके बारे में है वो अपने आप को ऑब्जर्व करके पता चलेगा ना। आप तो किताब में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे खुशी है कि मुझे दुख है, मुझे अच्छा फील हो रहा है कि खराब फील हो रहा है, किताब में देख के सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जमाना चला गया किताबों वाला। यू विल हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? उल्टी करना है, योर बॉडी वांट्स टू प्यूक। उल्टी करना है, कैसे करते हैं? पहले सांस रुकती है आपकी। छींकना है, यू वांट टू स्नीज, हाउ डू यू डू दैट? पहले सांस रुकती है आपकी। बाउल मूवमेंट नहीं है ठीक, कॉन्स्टिपेशन, यू वांट टू क्लियर योर बाउल, हाउ डू यू डू दैट? सांस लगा के जोर लगाते हो कि नहीं लगाते? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट अ लिटिल मोर, थोड़ा और समझते हैं। ये सब कुछ विदाउट होल्ड, नथिंग हैपेंस इन दिस यूनिवर्स। दुनिया में कुछ भी नहीं होता बिना होल्ड के। तो कुंभक से ही आपका जीवन चलता है, राइट? कुंभक इज द ट्रिगर फॉर योर बॉडी टू फंक्शन। जरा ध्यान से सुनते हैं। व्हाट इज लाइफ? ट्रिगर का रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज लाइफ। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे किसी चीज के लिए, या कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इज दैट थिंग लिविंग और डेड? दैट इज डेड, नॉट लिविंग, इजंट इट? रिस्पॉन्ड करते हैं ना, तो आप भोजन करते हैं, व्हेन यू ईट फूड योर बॉडी हैज टू रिस्पॉन्ड और नो। तो आपको जैसे ट्रेनिंग हुआ उसी भाषा में थोड़ी बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हाउ शुड योर बॉडी रिस्पॉन्ड? इंसुलिन रिलीज होना चाहिए ना। इंसुलिन, वैसे बहुत सारी चीजें रिलीज होनी चाहिए, बट आई एम टेकिंग जस्ट वन एग्जांपल। इंसुलिन, अमाइलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन, ऐसा बहुत कुछ होना चाहिए, मगर इंसुलिन मानते, इंसुलिन रिलीज होना चाहिए। नहीं हुआ तो डायबिटीज है ना। भोजन करने के बाद थायरोक्सिन रिलीज होना चाहिए ना। टेट्राहाइड्रोथायरोनिन, ट्राइहाइड्रोथायरोनिन, थायरोक्सिन जिसे हम कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब होना चाहिए ना। नहीं हुआ तो हाइपो और हाइपर थायरॉइडिज्म। बीमारी आपकी क्या है? आपका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं, आपका बॉडी जवाब नहीं दे पा रहा। इसमें कुछ डालते हैं तो उसके लिए जो उसको रिस्पॉन्ड करना नहीं कर पा, ठीक है ना। तो व्हाट डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू? आपका शरीर किस चीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए डिजाइंड है, इसको समझे। तो आप नेचुरल, प्राकृतिक कोई चीज, फूड डालते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। सपोज आप केमिकल डाल दिया आपने, हाउ विल योर बॉडी रिस्पॉन्ड? कैसे करेगा? कैसे करेगा आपका बॉडी रिस्पॉन्ड? इसको मालूम नहीं।
आपको अभी रशियन में बात करने लग जाऊं तो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? आपको पता ही नहीं चलेगा व्हाट दिस पर्सन इज टॉकिंग, यस और नो। तो आपने केमिकल डाला, केमिकल की जो डिजाइन नहीं है ना, पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालते हैं क्या? कभी डाल लिया करो, कभी सरसों तेल से भी चला लो, मिट्टी तेल से चला लो उसको, नहीं, वो इंजन तो डिजाइन नहीं है उसके लिए। मगर जब ये शरीर इस्तेमाल करते हैं तब ये कॉमन सेंस कहां जाता है हमारा? तो जब एक छोटा बच्चा पैदा हुआ तो कितने सारे उसको वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन किया ना, सब केमिकल बेस्ड था ना, केमिकल डाला उसके शरीर में। धीरे धीरे करके द बॉडी गेट्स कंफ्यूज हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस। आई कैन रिस्पॉन्ड टू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और दोज थिंग्स, इसके लिए तो रिस्पॉन्ड हम करेंगे, मगर ये क्या डाल दिया, इसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करें? तो आपका पूरा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कंफ्यूज हो गया, ठीक है ना? तो जरा देखें और अच्छे से, प्रूफ देखें इसका, प्रूफ देखते हैं। 100 साल पहले, 100 years back, हाउ मेनी पीपल यूज्ड टू हैव डायबिटीज? डायबिटीज किसको था 100 साल पहले? किसको था? किसी को भी नहीं था। डू यू रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी, नाना नानी, याद है आपको कितनी तकलीफ है, उनको कितनी तकलीफ थी? नहीं, कुछ भी नहीं थी। फिजिकली वो ज्यादा स्ट्रांग थे, आपसे ज्यादा काम कर सकते थे, ज्यादा हेल्दी थे, यस। तो इसका मतलब 100 साल पहले डायबिटीज थी नहीं, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नहीं था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं था, इतना न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम नहीं था। लोग बुढ़ापे में भी काम करते थे, आज जवानी में भी नहीं कर पा रहे। क्या गड़बड़ी हो गई? व्हाट हैज हैपेंड? वी हैव डिविएटेड द रिस्पांस मैकेनिज्म, हमने अपना रिस्पांस मैकेनिज्म खराब किया ना, तो वी हैव क्रिएटेड दिस डिजीज। अच्छा, एक और बात, लाखों सालों से ह्यूमन बॉडी को कोई बीमारी नहीं होती, लाखों सालों से, है ना, कोई बीमारी नहीं होती। इसका मतलब हमने तो बीमारी क्रिएट किया। और दूसरा बात क्या, दूसरी चीज, फैक्ट क्या है कि योर बॉडी नोज हाउ टू रिकवर फ्रॉम एनी डिफिकल्टी। आपके शरीर को मालूम ही है कैसे ठीक होना है, लेकिन बार बार इसको खराब करके इस हालत में हमने पहुंचा दिया कि इसके लिए अब मुश्किल हो गया। कभी कभी तो शट डाउन कर देता है ना, बहुत टॉर्चर आपको करे तो क्या करेंगे, आखिरकार यू विल गिव अप, है ना? तो वैसे ही शरीर कर रहा है ना, कैंसर, एंड स्टेज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यही कर रहा। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है दुनिया में। 25 साल पहले किसी ने थायराइड नहीं सुना होगा, थायराइड एपिडेमिक की तरफ फैल रहा। डायबिटीज 100 साल पहले किसी को नहीं था। तो हमको ये इसकी तरफ में आंखें तो खोलनी पड़ेंगी। आप लोग भारतीय है ना, आपके पूर्वज भी भारतीय थे, आप लोग समझदार लोग हो। प्रॉब्लम ये है कि बेवकूफ लोगों के को हमने अपना आका बना दिया। फिरंगी बेवकूफ होते हैं, ये गोरे बेवकूफ होते हैं। अगर इनकी ही चीज को मान के चलें तो सोल्यूशन तो है नहीं ना, सोल्यूशन तो है नहीं। दूसरी चीज, कैसे पता चलेगा सोल्यूशन नहीं है? घुटने खराब हो गए तो क्या है, अल्टीमेटली घुटने बदलवा लो ना, हिप, है ना, कमर खराब होगी तो कमर बदलवा लो, लीवर खराब हो गया तो लीवर चेंज करो, किडनी खराब हो गया तो किडनी ट्रांसप्लांट कर लो, हार्ट खराब हो गया तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो। इसका मतलब ठीक तो कुछ करता ही नहीं है। कुछ भी ठीक करते हैं, बता दीजिए। बेबी नहीं हुआ तो आईवीएफ करवा लो। तो एक बात बताइए, ये बड़ा अच्छा मॉडल है, बड़े चौड़े में कहते हैं कि हम तो ठीक करते नहीं जी, फिर भी आप उधर ही जाते हो ना। कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, फिर भी आप वहीं जाते हो। ये मॉडल बड़ा अच्छा है, राइट? सो द थिंग इज, आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं। यू विल हैव टू सी दैट योर बॉडी एक्चुअली रिकवर्स। सो we have people who have, we have testimonials long time back, testimonials 2-3 साल पुराने हैं हमारे पास में। we have lot of testimonials in fact। तो हम केवल recent testimonial ही शेयर करते हैं, पुराने अगर आपसे शेयर करने लग जाए तो बहुत सारे testimonial, right? The other thing is we are not trying to convince you or convert you, ये हम नहीं करना चाह रहे।
वी आर ट्राइंग टू ओपन योर माइंड, दैट्स इट. यू हैव टू टेक अ डिसीजन. तो डिसीजन आपको लेना है. हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको ये करना ही करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं. आप पूरी दुनिया घूम के आइए, अपनी हालत बहुत खराब कर लीजिए, फिर आइए. टाइम ज्यादा लगेगा तब, और आपकी हालत शायद ऐसी पता नहीं हो कि नहीं हो कि आप रिकवर कर पाए कि नहीं कर पाए. वंस योर ट्रांसप्लांट इज डन, फॉरगेट अबाउट रिकवरी. तो यू विल हैव टू ओपन योर माइंड्स. वी आर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, वी आर टेलिंग यू एवरीथिंग. सब कुछ बता रहे हैं, खोल के बता रहे हैं कि ऐसा है जी, गलत है तो आप बता दो मुझे. तो ऐसा नहीं है. वी वांट टू, ऐसे टाइम पे, आज के टाइम पे यू आर टेकिंग मेडिसिन. एक इंसान बता दो जो मेडिसिन लेके हेल्दी हो गया दुनिया में, ऐसा कोई भी नहीं है. यू आर टेकिंग लॉन्ग टाइम बीपी ना मेडिसिन. बहुत मेडिसिन लिया आपने ना, अभी तक तो ठीक नहीं हुए, देन यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ सम मेडिसिन विच विल क्योर यू. आगे चल के कोई अरे मेडिसिन से ही तो आप खराब हुए, उसको लेके क्योर नहीं होगा और खराब हो जाएंगे. ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा. what you are doing, there is a recovery factor of your body which becomes weak if you push it. एग्जाम्पल और एग्जाम्पल, आपको सारे एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं. So corona, many people would have gone into or would have got this corona. कोरोना बहुत लोगों को हुआ होगा, है ना, और एटलीस्ट वायरल इन्फेक्शन. So what is body's way to come out of that infection? शरीर का क्या तरीका है कि उस इंफेक्शन से निकले? तो सबसे पहली क्या चीज होती है, जैसे इंफेक्शन होगा, बुखार होता है ना, फीवर होता है ना आपको. फीवर मींस व्हाट? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, शरीर तापमान बढ़ा के अपना ना उस वायरस को मार देता है. मगर आप क्या करते हैं? यू टेक अप पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन, यू पुट डाउन द फीवर. वो टेम्परेचर आप नीचे कर देते, यानी शरीर को काम नहीं करने देता. शरीर उल्टी करेगा तो उल्टी बंद कर देंगे, दस्त करेगा तो दस्त बंद कर देंगे. ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. हाथ को खरोंच लीजिए, नाखून से ऐसे खरोंच लो, जलन होगा ना, इट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन. मोस्ट ऑफ द पेन इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. आपको एक टिप दे रहा हूं, अपने शरीर को ठंडा कर लीजिए, आपका पेन खत्म हो जाएगा. सो इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सा घी लगाएंगे, क्या होगा? जलन कम हो जाती है ना. तो आप जो गोली खाते हैं वो आपके लिवर में जाके लिवर प्रोसेस करता है, गेट कीपर आपका. वो केमिकल बॉम्ब आपके लिवर में फूटता है, उस बेचारे को जलन होती है, तो वो भी थोड़ा फैट क्रिएट करता है. आप क्या बोलते हो? फैटी लिवर. गलत कर दिया. आपने शरीर के अंदर कुछ उल जुलूल खा के रिस्क क्रिएट किया. उससे बचने के लिए शरीर को चाहिए, रिस्क को कम करने के लिए, हार्मोन कॉर्टिसोल, इसको कहते हैं कॉर्टिसोल. इसको बनाएगा कैसे? जाएगा शरीर में, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से बनता है ये. मगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसे ही आपका शरीर बढ़ाएगा, आप स्टैटिन खा लोगे ना, उसको कम कर दोगे. आप शरीर को काम ही नहीं करने दे रहे. Why you have made your body into a criminal? और एक बात बताऊं, जब भी आप कोई भी दवाई किस प्रिंसिपल पे काम करती है, गूगल में पढ़ लीजिए, सब कुछ अवेलेबल, इंफॉर्मेशन है. कोई भी दवाई कैसे काम करती है? रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म, आपके सेलुलर टिश्यू के रिसेप्टर्स पर बैठ के ब्लॉक कर देता, वो जो काम करना चाहे उसको बंद कर देता. अब मुझे सच में बताइए, मैं बहुत खराब एग्जाम्पल दे रहा हूं, मगर इससे ना समझ जल्दी आती है. कोई एक क्रिमिनल किसी का रेप करना चाह रहा है, किसी फीमेल का, वो नहीं करने दे रही, तो आप क्या करो? उसे कुछ ड्रग दे दो और उसके बाद जो मर्जी कर लो. इसको ट्रीटमेंट कहते हैं आप, इसको ट्रीटमेंट कहते हैं ना. तो आप क्या कर रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा. तो रोज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने बॉडी को, फिर कहते हैं ये ट्रीटमेंट के नाम पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. साइंस के नाम पे आप अपने शरीर को खत्म कर रहे हैं, साइंस का टैग लगा के. ये साइंस नहीं है. कटिंग एज मॉडर्न रिसर्च इस कंक्लूजन पे आ रहा है, रिकवरी आपका शरीर खुद करता है. आपका रिकवरी का स्ट्रेंथ, शक्ति कम हो गई है.
आपका डिजीज से निकलने की शक्ति शरीर की कम हो गई है। ये ऐसे ही है जैसे कि आप बहुत बाहर से कोई धक्का दे रहा है मगर आप संभले रहें, गिरे नहीं। तो आपकी इम्यूनिटी कब ज्यादा होगी, संभलने की शक्ति कब ज्यादा होगी, जितनी आपकी सांस रोकने की क्षमता होगी उतना संभले रहेंगे। तो ये ब्रेथ होल्ड जब हम कह रहे हैं तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रेथ होल्ड। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज कीजिए आपका लिवर खराब है, लिवर मजबूत करना है ना, या यू गो टू अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस किसी को है ना, अब जरा उसके नाक के पास में जाएं और उसकी ब्रेथ को जरा ऑब्जर्व करें। आपको क्या ऑब्जर्वेशन में आएगा, अरे उसकी लंबी सांस छूटती है, वो लंबी सांस छोड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। 1 यूनिट का इनहेलेशन, 1 यूनिट का होल्ड और 4 यूनिट का एक्सहेलेशन करेंगे ना तो लिवर आपका रिजुविनेट होना शुरू हो जाता है। 4 यूनिट का इनहेलेशन, 2 यूनिट का होल्ड, 1 यूनिट का एक्सहेलेशन करेंगे तो किडनी आपकी रिजुविनेट होनी शुरू हो जाती है। ये सपोर्ट सिस्टम है, आप शरीर को सपोर्ट देते हैं, उसके रिकवरी स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं। लेकिन डिपेंड किस पे करता है कि आपके शरीर में कमजोरी कौन से फैक्टर है, कौन सी शक्ति है जो कमजोर हो, वही डायग्नोसिस करते हैं। सो वो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, आपको बोलेंगे ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए, अपने बॉडी मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए, और वो आप हमें एक फॉर्म में भर के देते हैं। इट कम्स टू मी, मेरे पास में आता है। जब मैं उसको पूरा का पूरा एनालाइज करता हूं तो मुझे पता चलता है इस इंसान के अंदर कौन सा फैक्टर वीक है। तो आपको जो सिखाया गया है उसको कस्टमाइज कर दिया जाता है आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है, तो इस वक्त में आप मुझे एक बात बताइए, ये सभी जानते हैं ना, यू आर टेकिंग मेडिसिन, यू आर अ ड्रग एडिक्ट, इजंट इट? आपने शरीर को छिन्न भिन्न कर रखा है ना ये दवाइयां ले लेके। कल को आप क्रैश करेंगे ही ना करेंगे। हु इज डाइंग नेचुरली टुडे? ना नेचुरल बर्थ हो रहा है ना नेचुरल डेथ हो रहा है। क्या आपके ऑब्जर्वेशन में नहीं है ये? तो यू विल एंड अप इन अ हॉस्पिटल, यस और नो? यू आर गोइंग टू एंड अप इन अ हॉस्पिटल। हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम? जिम्मेदारी कौन लेगा उस चीज की? कोई भी लेगा जिम्मेदारी? क्या आपका परिवार लेगा जिम्मेदारी, जिन्होंने बोला कि डॉक्टर के पास जाओ दवाई खाओ, डॉक्टर के पास जाओ दवाई खाओ? नहीं। क्या आपका डॉक्टर लेगा जिम्मेदारी? नहीं, उसको तो कानून से प्रोटेक्शन है। क्या आपकी सरकार लेगी जिम्मेदारी? नहीं। क्या WHO लेगा जिम्मेदारी? नहीं। क्या वो अमेरिका लेगा जिम्मेदारी, जिसको आप पैसा देते हो, ये दवाई खाते हो तो कट देते हो उसको, और वो हथियार बनाता है, चौधरीपना करता है दुनिया में, क्या वो लेगा जिम्मेदारी? नहीं। एक बात समझ जाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, जब तक जिए हेल्दी जिए, अच्छे से जिए, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। तो इसके लिए आपको अपने शरीर की शक्तियों को वापस स्थापित करना पड़ेगा, वापस अपने रिकवरी फैक्टर को स्ट्रांग करना पड़ेगा, वापस से अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, रीजनरेशन कैपेसिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। किसी को न्यूरो प्रॉब्लम है, क्या नसें रीजनरेट करती हैं? 100%। हमारे पास बहुत एग्जांपल है। पैरालिसिस के लोग, जो पैरालिसिस था उनका 95 to 96% तक रिकवर हो गया सेंसेशन। ड्रॉप फुट, जो मैराथन रनर, मैराथन दौड़ नहीं सकते थे, उन्होंने, डॉक्टर ने कह दिया आप नहीं दौड़ सकते, वो दोबारा मैराथन की तैयारी कर रहे हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस के लोग ठीक हो। तो ड्रॉप फुट, माइस्थीनिया ग्रेविस, लॉक जॉ, टेनिस एल्बो, ऐसे लोग ठीक हो रहे हैं। तो कौन ठीक कर रहा है? हम ठीक कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं ठीक कर रहे, हम तो केवल तरीका बता रहे हैं आपको। आपका शरीर ठीक कर रहा है। जो बॉडी का रिकवरी तरीका है, रिकवरी का, उसको हम स्ट्रॉन्ग कर, तो ये शरीर आपको ठीक कर देगा। ये आपकी जिम्मेदारी हमेशा लेता है। आप जीना चाहे ना नहीं जीना चाहे, आपका शरीर हमेशा जीना चाहता है। तो ये वो सारे काम करता है जिससे कि आप ठीक हो, उसी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, उसी को बढ़ा रहे हैं, और एक स्पेशलाइज तरीके से बढ़ा रहे हैं। राइट? पार्किंसन से क्या आप निकल सकते हैं? 100% निकल सकते हैं पार्किंसन। कितना निकल पाएंगे डिपेंडिंग अपॉन एज, कितने टाइम से है, कितनी जल्दी निकल पाएंगे। टाइम का फैक्टर केवल वेरी करेगा।
क्योंकि देखिए, पार्किंसन का कोई इलाज है क्या? जो लीवोडोपा थेरेपी देते हैं, क्या वो इलाज है पार्किंसन का? वो पार्किंसन का इलाज नहीं है। इट इज जस्ट अ लिटिल मैनेजमेंट। थोड़ा तकलीफ कम हो रही है। देखो, मैनेजमेंट, इमरजेंसी में मैनेजमेंट करना है तो कर लीजिए, मगर इलाज तो करना पड़ेगा आपको। अरे भाई, आपका एक स्लिप डिस्क हो गया, वहां पे आपने ऑपरेट करा दिया, क्या दूसरी जगह नहीं होगा वो? तो ऑपरेशन तो इलाज नहीं होता, ऑपरेशन तो मैनेजमेंट होता है। दवाई खा के मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, मगर ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको। तो पार्किंसन का इलाज कैसे होता है? देखिए, 100 साल पार्किंसन पे काम हुआ और आज जाके पता चला कि पार्किंसन का आपकी गट हेल्थ के साथ में, यानी पेट डाइजेशन के साथ, जठराग्नि के साथ में कोरिलेशन। और 8000 साल पहले आयुर्वेद यही बात कहता था। ठीक है ना? तो ऊर्ध गत वायु, आयुर्वेद में क्या कहा जाता है? अगर फ्लो आपके बॉडी में एक तरफा नहीं है, उल्टा हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम ऊपर की तरफ, यानी आपके ब्रेन में होना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में, यानी कुछ सालों के बाद में। तो इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ना शुरुआत कहां से होती है? पेट से होती है। एक्चुअली गलत नहीं कहते थे, सही कहते थे। तो आप अगर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो पता चलेगा जिसको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन है वो पार्किंसन की तरफ में चला जाता है। तो अगर आप इसको फ्लो, अपने शरीर के अंदर जो फ्लो हो रहा है किसी भी चीज का, मटेरियल का, लिक्विड का, लिम्फ का, ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, अगर उसको करेक्ट कर सकें, और दूसरा आप अपने रीजनरेटिव का, मेटाबॉलिज्म को ठीक कर सकें, तो पार्किंसन काफी हद तक ऐसी स्थिति में हम ला सकते हैं उस इंसान को जहां उसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है? तो फ्लो को ठीक करने का तरीका क्या है? आप अपने शरीर के अंदर कैसे फ्लो को ठीक कर, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप थोड़ा सा फोर्स करते हो। अगर लिवर को आप ठीक कर दोगे तो अपना मेटाबॉलिज्म आप ठीक कर सकते हैं। तो उस इंसान के पैरामीटर, उस जो हम डायग्नोसिस करते हैं, जो फॉर्म, उसको एनालाइज करके हमें पता चल जाए कि कौन से फैक्टर्स वीक हैं, उसको अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो दैट पर्सन विल सर्टेनली बी एबल टू हैंडल हिमसेल्फ, हरसेल्फ, व्हाटएवर, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपके रिकवरी फैक्टर को अगर आप बढ़ा दीजिए, आप कोई भी बीमारी से निकल सकते हैं। ठीक है? इसका हमारे पास में सबूत है। For millions of years, human beings never used to have those kind of disease. एक modern research है, Innu community, Aboriginals of Canada, for 75 years they have been tracked. उनका स्टडी भी अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। अब देखिए, उनको कोई डिजीज नहीं होता था। जैसे ही उनको सिविलाइज करने की कोशिश की और मॉडर्न लाइफस्टाइल में लेके आ गया, उनको सारी डिजीज हो गई, है ना? तो ये चीजें थोड़ा, आप लोग समझदार लोग हैं, आप जरा इस तरफ में सोचिए। आपको जो पढ़ाया लिखाया गया है ना, उससे हटके थोड़ा कीप योरसेल्फ अ लिटिल फ्री, योर माइंड अ लिटिल फ्री, एंड ट्राई टू थिंक अबाउट व्हाट इज हेल्थ। ये क्या हो रहा है जो हम कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? तो आपको भी पता चलेगा। जो मैं बता रहा हूं वो कोई अजीब सी चीज नहीं है, वो ऐसा नहीं है कहीं और से आया, ये सब जानते ही हैं। यू जस्ट हैव टू गिव योर माइंड, और जस्ट टर्न योर माइंड इन दैट डायरेक्शन। हाँ जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Poonam ma'am talks about frozen shoulder. फ्रोजन शोल्डर, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है? आपको पता चलेगा फ्रोजन शोल्डर आपका बड़ी आसानी से ठीक हो सकता है। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, इसको मैं जितना भी एक्सप्लेन करूंगा और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो आसानी के लिए बता, आप एक काम कीजिए। फ्रोजन शोल्डर उन लोगों को होता है जिनके बॉडी में हीट कम होती है, जिसे हम कहते हैं कफवात दोष। कफ प्रकृति होती है, मेटाबॉलिक हीट कम होता है, जठराग्नि कम होती है, गार्हपत्य अग्नि कम होती है। अब एक काम करें, आप बैठे और थोड़ी थोड़ी देर, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना सांस रोकें, फिर एक्सेल करें, फिर इनहेल करके सांस रोकें जितना हो सकता है, फिर एक्सेल करें। ऐसे करते जाएं 10 मिनट। ठीक है? 10 मिनट के लिए करते जाएं। उसके बाद क्या देखेंगे, कुछ लोगों को तो पसीना आने लगता, आपको बॉडी में हीट फील होगी। और उसके बाद उस शोल्डर को जरा फील करें, वो लूज होगा पहले से।
उसका जो फ्रोजन पार्ट है ना वो लूज हो जाएगा। ये मेरे प्रैक्टिकली बहुत लोगों के साथ में एग्जांपल है। जो योगासन करते हैं ना, योगासन, उन लोगों को मैंने कुंभक करवाया और उसके बाद बोला कि आप जब आसन करो तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया कि अपने सिर को घुटने से लगाना, तो उनका डिस्टेंस चेक किया कितनी दूर है उनका सर घुटने से, कुंभक कराया, उसके बाद देखा तो ज्यादा क्लोज आ गए। तो आपके जॉइंट्स जो है ना वो फ्लेक्सिबल बन जाते हैं कुंभक करते ही। थोड़ा सा भी अगर आप कुंभक करेंगे आपके बॉडी के सारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होने लग जाते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, इसको मैं और भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, कोई नाम दे सकता हूं, मैं इसको ग्रीको रोमन नाम भी दे सकता हूं, ऐसा नाम जो आप बोलने में भी आपका जीभ पलटे। मगर ऐसा मुश्किल वर्ड बोलने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता साहब। कितना नामकरण किया है ना फिरंगियों ने, ठीक तो कुछ भी नहीं करते। तो केवल नाम बोलने से ठीक नहीं होता है ना। कोई ऐसा नाम बोल दो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारी चूंकि थोड़ी गुलामी की आदत है तो हमको लगता है कि फिरंगी समझदार, मगर फिरंगी की सबसे बेवकूफ प्रजाति है। दुनिया बर्बाद कर दी ना उसने, हमसे साइंस चुरा के ले गया, मगर चोरी किया हुआ माल हजम नहीं होता है ना। एनवायरमेंट पोल्यूट कर दिया, खराब कर दिया। आज लोगों की लाइफ क्यों खराब हो गई? अगर इतना ही हम लोग समझदार हो गए तो हम समझदार नहीं हुए, अब समझदार होना शुरू होंगे, क्योंकि बिना तकलीफ के समझदारी आती नहीं है। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग भारतीय हैं, जरा दिमाग को खोलिए, सोचिए जरा, आपको मालूम ही है कि इससे कैसे निकल के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन। रचना जी। हाँ जी, Nagamani Suri sir talks about suffering from degenerative disc and cervical spondylitis. रीजेनरेशन को कौन सी चीज रीजेनरेट करती है? कौन सी दवाई बनी है इस दुनिया में जो रीजेनरेट करती है? मुझे एक दवाई बता दो। ऐसी कोई दवाई है ही नहीं जो कि आपके बॉडी को रीजेनरेट। तो आपकी प्रॉब्लम डीजेनरेटिव है। इस तरीके से भी अगर देखें तो आप देखेंगे कि रीजेनरेशन तो आपका होता नहीं, आप तो एक्चुअली इलाज कर ही नहीं रहे हैं, आप केवल पेन को कम कर रहे हैं, आप रीजेनरेट तो कर ही नहीं रहे। तो रीजेनरेट कौन करता? तो मैं आपको अब एक और एग्जांपल दूंगा। शुरुआत में कैसे शुरू किया था हमने? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। आप कुछ खाते हैं, आपका बॉडी रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अगर ये बिगड़ गया तो आपकी बॉडी में क्या बिगड़ जाएगा? तो ये कुछ शब्द बोलूंगा, ये भी मैं ग्रीको रोमन शब्द बोलूंगा क्योंकि चलन में ज्यादा है। सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम आपका इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरी चीज बोलूं, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज बोलूं, आपका मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो जाता है। ये ग्रीको रोमन शब्द बोल रहा हूं, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा इससे। अब मैं असली बात बोल रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। तो अगर आप एक धुएं वाली गाड़ी, कोई डीजल की गाड़ी है, धुआं निकाल रही है, यू गो क्लोजर टू इट, विल यू इनहेल मोर और इनहेल लेस? सांस ज्यादा लेंगे कम लेंगे? आप रोक लेंगे सांस को, ज्यादा नहीं लेंगे, कम लेंगे, है ना, सबको मालूम है ना। तो आपने एनवायरनमेंट को जब पोल्यूट किया तो क्या आप सांस ले रहे? पहला पॉइंट बता रहा हूं, इनहेलेशन से आपके शरीर में रीजनरेशन होता है। तो अब जब इनहेल ही नहीं कर रहे प्रॉपर्ली तो रीजनरेशन कहां से होगा? पहली बात तो ये बताइए, नहीं होगा। दूसरा पक्ष इसका, दूसरा बता रहा हूं, जैसे ही आपने अपने शरीर के रेस्पॉन्स मैकेनिज्म को खराब किया, मेटाबॉलिज्म खराब हुआ, अब आपका शरीर रीजनरेट कैसे करेगा? क्योंकि उसको मेटाबोलाइज करके न्यूट्रिशन और बाकी चीजें क्रिएट करनी है, बनानी है, जिससे कि रीजनरेशन होगा। तो रीजनरेशन तो होगा ही नहीं। यहां तक कि हमने फर्टिलिटी को फैक्टर को ड्रास्टिकली डाउन कर दिया पूरी ह्यूमैनिटी का। यहां तक कि हमने ह्यूमन जीनोम, जेनेटिक्स जिसे कहते हैं, उसको डिविएट कर दिया। क्या जेनेटिक्स को आप ठीक कर सकते हैं? 100% ठीक कर सकते हैं। मॉडर्न कटिंग एज रिसर्च बता रहा हूं, 99% ऑफ योर जेनेटिक्स कैन बी चेंज्ड एंड दैट 99% इज कॉल्ड एज एपीजेनेटिक्स, जो बदल सकता है। लेकिन एपीजेनेटिक ट्रिगर, वो ट्रिगर क्या है जो जेनेटिक्स को बदल सकता है? ये आपका कुंभक, वो एपीजेनेटिक ट्रिगर है। जो आपको सिखाया जाएगा वो एपीजेनेटिक ट्रिगर है।
इसीलिए हम जेनेटिक जिसे कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता ठीक, वो सारे ठीक हो रहे हैं। हम डायबिटीज का प्रोग्राम रन करते हैं, वहां डायबिटीज से लोग निकल रहे हैं, दवाइयां छोड़ रहे हैं। ब्लड प्रेशर का प्रोग्राम करते हैं, ब्लड प्रेशर से निकल रहे हैं लोग, दवाइयां छोड़ रहे हैं। जिन्होंने बचपन से ब्लड प्रेशर का मेडिसिन लिया वो लोग दवाइयां छोड़ रहे हैं। हम लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं गर्भाधान, जिसमें कि हम कंसेप्शन करवाते हैं। हम ये कहते हैं कि नेचुरल कंसेप्शन होगा, आईवीएफ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आईवीएफ कराओगे तो सक्सेसफुल होगा ज्यादा। लेकिन एक चीज तो 100% गारंटी, क्या? आपकी बीमारी आपके बच्चे में नहीं जाएगी। तो केवल टाइम फैक्टर है। अगर आज शुरू करेंगे तो हो सकता है किसी को 6 महीने लगे उस स्टेट में, हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है किसी लोग को 3 साल लग जाए सारी प्रॉब्लम से निकलने में। मगर एक बात बताइए, और तो कोई तरीका नहीं है ना? ऑप्शन क्या है? व्हाट इज ऑप्शन? दवाई खा के तो और खराब हो जाएंगे। सो द early you start working upon your body, the early you start empowering yourself, the early you start empowering your organs, रीजनरेशन, अपना स्ट्रेंथ को जितना आप शक्तिशाली बनाएंगे उतना जल्दी आप देखेंगे आपकी लाइफ अच्छी हो गई, हेल्दी हो गई, एम्पावर्ड हो गई, और जिस चीज के लिए आप ये जीवन जी रहे हैं उस तरफ में एक कदम बढ़ा पाएंगे। अदरवाइज तो बीमारी से ही लड़ रहे हैं सारे के सारे। नेक्स्ट, Adarsh, Suri sir talks about shoulder cuff rotator tear. क्या? Shoulder cuff rotator tear. वो एक Okay. मसल tear. नहीं, ठीक है, समझ। देखिए एक और एग्जांपल बताता हूं, है ना? आई कैन गिव यू आई कैन टॉक फॉर डेज, हफ्तों तक आपसे बात कर सकता हूं, एग्जांपल दे के समझा सकता हूं। नाउ इफ यू सी एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल इशू, जिस इंसान के साथ में स्ट्रक्चर का इशू है, दोबारा से क्या जाना है? उसके नाक के पास में जाओ, अपना कान ले जाओ और देखो कि उसकी ब्रेथ कैसी चल रही है, एंड मेक दैट पर्सन डू एन एक्सपेरिमेंट। ये सब आप अपने साथ भी कर सकते हैं। आप सभी का स्ट्रक्चरल इशू है ना? अब देखना, मैं बता रहा हूं, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्यान शक्ति। ये व्यान शक्ति क्या? जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है वो व्यान शक्ति, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को मेंटेन करती है वो व्यान शक्ति। ये है क्या? इसको अगर ब्रेथ के टर्म्स में देखा जाए तो क्या चीज है? कैसे पता चलेगा कि आपकी व्यान शक्ति कमजोर है? तो एक काम कीजिए, मैक्सिमम इनहेल कीजिए, एटलीस्ट 4 टाइम्स, जितना लंबा इनहेलेशन किया 4 टाइम्स मोर आपको होल्ड करना है, रोकना है। उसके बाद स्लोली एक्सेल करना। अगर आप स्लोली इसके बाद एक्सेल कर पाए तब आपकी व्यान शक्ति अच्छी है। लेकिन अगर आपकी सांस, पहली बात तो 4 गुना आप रोक भी नहीं पाएंगे, और रोक लिया गलती से तो एकदम से छूट जाएगा। इसका मतलब क्या? आपकी व्यान शक्ति तो कमजोर है। तो स्ट्रक्चर का इश्यू आप आर्टिफिशियली, ये कॉस्मेटिकली तो ठीक नहीं कर सकते भाई। एक जगह रॉड लगा दिया, एक जगह कैप लगा दिया, एक जगह घुटने, मगर स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ तो आपके अंदर है ही नहीं। तो उसके लिए क्या कर रहे हो आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप सोच रहे हैं कोई दवाई बन जाए, दवाई से आप खराब हुए, दूसरी दवाई चाहिए। नाउ यू विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस साइकी, यू विल हैव टू वर्क। कहते हैं बिना तपस्या के कोई फल नहीं मिलता। तो अपने शरीर को आपको थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा उसके स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए। तो व्यान शक्ति अगर आपकी ठीक है तो आपका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। और अगर डिविएट हो, कुछ गड़बड़ हो, चाहे वो किसी भी जॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी जॉइंट, नॉट जस्ट दिस, आपका जो गर्दन के ऊपर है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मैं केवल उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं किसी भी जॉइंट का स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रेंथ अगर आपको लाना है तो ये करना ही पड़ेगा। अदरवाइज यू विल जस्ट डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम। देखो ये प्रॉब्लम है कहने से सॉल्यूशन नहीं मिलता। आप 10 स्कैन करा लो, एमआरआई ये करा लो, कैट स्कैन, रैट स्कैन, जो स्कैन करा लो, आप कोई भी स्कैन कराने से ठीक हो जाते हैं क्या? तो स्कैन कराने से, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने से, उसका कोई नाम रख देने से ठीक नहीं होता। ये आपको समझना पड़ेगा।
तो पहली बात, ये जो आप बोल रहे हैं कि ये डायग्नोसिस है मेरा, कि ये बताया गया है कि ये प्रॉब्लम है, उससे सॉल्यूशन नहीं मिलता। सॉल्यूशन जो है उस प्रॉब्लम के पीछे जाने से मिलेगा कि वो क्यों आया। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ अगर कमजोर होगा तो जॉइंट में प्रॉब्लम एक जगह आएगा, दूसरी जगह भी आएगा। इवन इफ यू डू समथिंग, कहीं पे मलहम लगा रही है, दर्द कम हो गया वहां पे, तो इसका मतलब दूसरी जगह नहीं आएगा, आए, क्योंकि आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ही कमजोर है। उसको अगर ठीक करेंगे तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम भी जाएगी, और यू कैन ऑल्सो इंश्योर कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं, या आए तो जल्दी रिकवर हो। ठीक है ना? तो हाउ विल यू डू दैट? कि व्यान शक्ति बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। जस्ट एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है? एंड इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, यू ऑल पीपल नो, आप लोग समझदार हो ही। नेक्स्ट, Yogesh sir talks about disc bulge and cervical lordosis. सर्वाइकल Lordosis. Basically curve spine में curve हो जाता है. अच्छा, मैं ये देखो, एक्चुअली मैं इसके बारे में, इसके पहले जो बोल रहा हूं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ वीक हो गया है। अच्छा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, ठीक है? एक ही चीज को कई तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप जैसे भी समझ जाओ। यू टेक, व्हाट यू टेक फ्लैट स्टोन्स, राउंड स्टोन्स, ऐसे होते हैं ना, कई नदियों में गोल 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 पत्थर मिलते हैं। ऐसे 33 पत्थर ले आओ, चपटे पत्थर, गोल 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 पत्थर, उस बीच में ड्रिल कर दो, 33 स्टोन्स बीच में ड्रिल कर दो, और एक रस्सी लगा दो। तो ये आपका स्पाइन बन गया, रीढ़ की हड्डी बन गई। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर आप दोनों तरफ से खींचेंगे, आप दोनों तरफ से खींचेंगे तो सारी हड्डियां एक लाइन में आ जाएंगी ना, और जैसे ये ढीला छूटेगा वो एक दूसरे से स्लिप करना चाहेंगे, स्लिप करेंगे ना। तो व्हेन आई सेड व्यान शक्ति, दिस इज द स्ट्रेंथ आई एम टॉकिंग अबाउट। ये स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया कि ये व्यान शक्ति है, ये जो खिंचाव होता है ये व्यान शक्ति। तो ये तो बढ़ाएंगे नहीं, तो एक जगह डिस्क बल्ज हुआ, निकल गया या स्लिप हुआ, क्या दूसरी जगह नहीं होगा? वो दूसरी जगह हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल इश्यू जब भी होता है, देखिए हम आपको क्या सिखाते हैं, हम आपको 3 चीजें सिखाते हैं, अंगन्यास, मर्म विन्यास और हठ विन्यास, तीसरा कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में अगेन 3 चीजें सिखाते हैं, 1 2 3 इज व्यान, क्रिया, कुंभक। यानी ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को तो हम फंडामेंटल है बढ़ाना। दूसरी चीज, सेकेंड थिंग, अगर आपके शरीर में अलाइनमेंट नहीं है, यानी राइट और लेफ्ट का अलाइनमेंट, एक्चुअली आपके बॉडी में 3 अलाइनमेंट होते हैं, नाभि, कौड़ी, नले। नाभि नेवल का अलाइनमेंट है, हाँ, नेवल का अलाइनमेंट वो सही जगह पे होना चाहिए, नहीं तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा। दूसरा कौड़ी, इन बिटवीन द चेस्ट का मिडिल, वो अलाइन होना चाहिए, नहीं तो लंग और हार्ट का इश्यू आएगा। तीसरा नले, जांघों का होना चाहिए। ये आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ लेके आता है। पहलवान आपको मालूम है जांघों पे ठोकते हैं, पहलवान क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं मेरे नले मजबूत हैं, तुम मुझे हिला नहीं सकते, मेरा स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। ठीक है, तो ये 3 अलाइनमेंट हम करवा ही रहे हैं। हठ विन्यास में ये 3 अलाइनमेंट इनबिल्ट है। आप अपनी गाड़ी को उबड़ खाबड़ जगह पे ले जाते, उसके बाद व्हील अलाइनमेंट कराते हो आके, अपने शरीर को खूब खराब इस्तेमाल करते हैं, फिर भी अलाइनमेंट नहीं करते। तो लोगों को सियाटिका की प्रॉब्लम आ रही है, कई लोगों को सियाटिका, ये साइटिका, आप जैसे भी प्रोनाउंस करें, उसकी प्रॉब्लम आ रही है, वो अलाइनमेंट की वजह से होता है। तो अलाइनमेंट अगर आप ठीक कर दें तो सियाटिका प्रॉब्लम चली जाती है। मगर दुनिया भर का ऑपरेशन करा लो, वो नहीं जाएगा। ठीक है, 2 बातें बता दिया, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, अलाइनमेंट की वजह से भी होता है। तीसरी बात बता रहा हूं, ठीक है, तीसरी बात बता रहा हूं। पहला जो मैंने बताया था वो बताया व्यान शक्ति, दूसरा जो मैंने बताया वो है अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी, और अब तीसरी बात मैं बता रहा हूं, ये है आपका लिवर। इसको आप कनेक्ट भी नहीं करते। लोगों की जो ज्यादातर प्रॉब्लम है वो डीजेनरेटिव है,
और डीजेनरेटिव प्रॉब्लम हमेशा लिवर से शुरू होती है। एक आसान तरीका बताता हूं, अगर आपको किसी भी जगह पे, शरीर के किसी भी स्थान पे स्वेलिंग है, रेडिशनेस है, तो ये उस जगह को ठीक करने से नहीं ठीक होगा। आपका लिवर ठीक नहीं है और वो टॉक्सिन क्रिएट करेगा, वो आपके जॉइंट पे जमा होंगे और आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आपको लिवर को ठीक करना होगा। जॉइंट की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए लिवर को ठीक होना। देयर इज अ वर्ड, एक शब्द है, मैं ये शब्द थोड़ा रिलक्टेंट होता हूं बोलने के लिए, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इसमें है ही नहीं, आपकी ग्रीको रोमन वर्ड में ट्रेनिंग हुई है। इसे कहते हैं समान वायु। समान वायु आपके शरीर का डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर है। आपके शरीर में जब फैलाव होता है ना, कोई चीज समान रूप से फैलना चाहिए, तो समान वायु फैलाता है आपके शरीर में। ये फैलाने की शक्ति जो है ना, ये ज्यादातर लोगों में इस वक्त में समान वायु की कमी है। समान वायु की वजह से आपके शरीर में जो भी कुछ डाइजेस्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। दूसरी बात, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो टॉक्सिन्स हैं, क्योंकि डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा। ज्यादातर लोग देखेंगे कि उनके शरीर में गैस बन रही है, डकारें आ रही हैं, गैस निकलती है, इसका मतलब डाइजेशन नहीं, फर्मेंटेशन हो रहा है। जठराग्नि कमजोर है, फर्मेंटेशन हो रहा है। तो हम क्या इसको ठीक कर सकते हैं? हाँ, ठीक कर सकते हैं। कौन सी दवाई है जो आपकी जठराग्नि को ठीक करेगी? कोई भी दवाई नहीं में, दवाई हो ही नहीं सकती। क्या आपका भोजन, अच्छा भोजन करने से ठीक हो जाएगा? अच्छा भोजन अच्छी बात है, मगर अच्छा भोजन पचाने के लिए आपकी शक्ति लगेगी। तो अच्छा भोजन खा के कितने लोग हैं जो मैराथन दौड़ने लग जाते हैं? तो भोजन, फूड इज गुड, आप उसको नेचुरल की तरफ में ले जाइए, आप अच्छा भोजन करिए, बट जो शक्तियां आपके शरीर की कमजोर हो गई हैं उस पर तो आपको डायरेक्टली काम करना ही पड़े। अदरवाइज लिटिल सपोर्ट, जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो ठीक हो जाएंगे फूड अच्छा करके, मगर ज्यादातर लोग एक तो फूड को ही अच्छा नहीं कर पाएंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हाइब्रिड क्रॉप, इनऑर्गेनिक फूड, नहीं बच सकते आप। उसके ऊपर से और भी प्रोसेसिंग। तो इस वक्त कहां आप जाएंगे बचने के लिए? कौन सा फूड, कौन सी दुनिया में जाएंगे? पूरा पृथ्वी खराब हो चुका। तो आपकी शक्तियां ही बचाएंगी आपको, और कोई नहीं बचाएगा। इसको बढ़ा दीजिए, झेल जाएंगे आप। नहीं बढ़ाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो मेटाबॉलिज्म तो इंप्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। We will take up the questions with the people who have raised their hands. So Poonam ma'am, you can ask your question. Please unmute yourself. हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोले। मैं आपकी हर बात से कन्विंस हूँ और मुझे उस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे पता है 100% वर्क करेगा। लेकिन मेरा प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि कई बार जब हम तकलीफ में होते हैं और लो एनर्जी स्टेट में होते हैं तो चीजें छूट जाती हैं। तो मैंने क्वेश्चन ये भी डाला था उसमें कि किसी तरह का कोई एक फॉलो अप रहे या कुछ रहे, ऐसा ना हो कि किया और फिर छोड़ दिया, इस तरह की चीजें। और एक अच्छा, इमोशन की वजह से भी कचरा भरता है कई बार। तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, इसको समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, हम क्या कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं, और हम क्या करते हैं। अगर आपके शरीर में प्रॉब्लम है तो क्या लगता है आपको कि आपके माइंड और इमोशन में प्रॉब्लम नहीं होगी? पहली बात, आपको टैग नहीं किया गया मेंटल डिजीज का, टैग नहीं है। लेकिन इफ योर बॉडी इज नॉट गुड, योर माइंड इज एनीवे नॉट गुड, योर इमोशन इज एनीवे नॉट गुड, पहली बीमारी तो वहां पे होती है। आपके सटल एस्पेक्ट्स पे बीमारी आपकी आए, एनर्जी लेवल पे बीमारी आएगी, उसके बाद शरीर पे आएगी। तो केवल टैग नहीं किया जा रहा। लेकिन एक और चीज है, किसी भी मेंटल डिजीज की कोई दवाई नहीं, ठीक है? ये बात आपको आज समझें, कल समझें, जब मर्जी समझो, मगर अल्टीमेटली यू विल कम टू दिस, किसी भी मेंटल डिजीज की दवाई नहीं होती। लेकिन कुंभक करेंगे, किसी भी मेंटल डिजीज से निकलेंगे 100%। पहली बात तो आपका जो नॉन कमिटमेंट है ना,
ये मत सोचिए कि ये आपकी गलती है, ये कि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नॉन कमिटमेंट होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आप देखेंगे कि आप ज्यादा कमिटेड हो जाएंगे। लोगों को काम करने की इच्छा नहीं होती ना आज के टाइम पे, बड़ा जोर लगता है। क्या उनकी गलती है? नहीं, उनकी गलती नहीं है, उनकी एनर्जी ही नहीं है, जान ही नहीं है शरीर में, मेंटली इतना डिस्ट्रैक्शन है, तो उनकी गलती नहीं है। लेकिन अगर वो चीज हम ठीक कर दें तो उनको लाइफ में क्या देखने को मिलेगा? अरे उनको काम करने की इच्छा होती है, अंदर से खुशी आती है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। तो ये एक नहीं, सैकड़ों, बल्कि आज के टाइम पे हजारों लोगों का एक्सपीरियंस है जो कुंभक कर रहे हैं। तो पहली बात ये कि जो आपको डर है कि ये छूट जाएगा, अगर आप 3 महीने कर लेना तो ये आप छोड़ेंगे नहीं, ये बात है। दूसरी बात, हम आपको नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते, यानी आप हमारे लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं। तो यस, प्रोग्राम का तो ड्यूरेशन होगा ही कि भाई ये 9 हफ्ते चलेगा और 1 महीने का हम एक्सटेंडेड आपको सपोर्ट देते हैं, मगर आप हमारे ग्रुप से नहीं निकलते कभी भी। तो आपको नई नई इंफॉर्मेशन, हर पूर्णमासी को सेशन होता है जो सबके लिए ओपन होता है, वहां पे आप आ सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी भी आपको हम सपोर्ट अलग से प्रैक्टिस सेशंस देते हैं, जो कि आप आके वो प्रैक्टिस हर हफ्ते में 1 बार 2 बार आके आप कर लेंगे तो आपका एक लय, एक रिदम बना रहेगा। हम छोटे प्रोग्राम्स करते हैं जो कि इमरजेंसी मैनेजमेंट टाइप का है, जिसमें कि हम कुछ आपको बोलते हैं कि आप सपोर्ट ले लीजिए, मेडिसिन सपोर्ट ले लें, रस औषधि का सपोर्ट ले लें, आयुर्वेदिक हर्ब्स का सपोर्ट ले लें, या कुछ ऐसा करें जिससे आपको थोड़ा इमीडिएट रिलीफ मिले, ताकि आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करना। ऐसी चीजें प्रोग्राम में है ही, इनबिल्ट किया गया है। तो सपोर्ट सिस्टम हमारा आपके साथ में हमेशा रहेगा। आप हमारे एक तरीके से मेंबर होंगे, लाइफ टाइम मेंबर होंगे। तो आप जो ये फीस दे रहे हैं ना, ये प्रोग्राम का तो एक फीस होगा ही, मगर क्या है कि लाइफ टाइम आप हमारे मेंबर हैं, ये उसके लिए भी है। ठीक है, तो वो चिंता ना करें। पहली बात तो आप ही ठीक हो जाएंगे, है ना, किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, आप ही ठीक हो जाएंगे। आपकी साइकोलॉजी, आपकी माइंड, आपका आपका बॉडी, आपके एनर्जी लेवल्स इतने होंगे तो आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ में जाएगी। बाकी सपोर्ट सिस्टम हमेशा के लिए है। जी, थैंक यू सर। Okay, Bhargavi ma'am, please unmute yourself and ask your question. Bhargavi ma'am. Neha ma'am, you can unmute yourself, please. Kavita ma'am. Yes, Neha Hello. ma'am, you can ask your question. नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। मेरा नाम नेहा है और मैं 52 इयर्स की हूँ एंड मुझे वेरिकोस वेन्स का बहुत प्रॉब्लम है। मतलब वेरिकोस वेन्स की वजह से मेरे पैर हमेशा सूजे हुए रहते हैं, मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ और मतलब जॉइंट्स में बहुत स्टिफनेस भी रहती है। और अच्छा। मैं आपसे फ्रैंकली बोलूं, मैं आपसे इसलिए कनेक्ट हो गई क्योंकि मैं थोड़ा कुंभक पहले भी प्रैक्टिस कर रही थी, पर आई वाज डूइंग दैट स्क्वायर ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड 4 काउंट्स तक कर रही थी। 4 काउंट्स, इनहेल, होल्ड, देन एक्सहेल, देन होल्ड, वैसा कर रही थी। तो मैं बहुत ऐसे आपसे कनेक्ट हो गई एंड रियली आई वांट टू जॉइन द कोर्स एंड पर मेरा प्रॉब्लम बता देता हूँ, प्रॉब्लम क्यों होता है ये और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। तो एक बात बताइए कि न्यूटन ने देखा कि सेब का पेड़ है, सेब नीचे गिरा तो नीचे ग्रेविटी है, मगर न्यूटन से किसी ने पूछा क्यों नहीं कि पेड़ ऊपर क्यों उग गया? पेड़ ऊपर उगता है ना, आप ग्रो कैसे करते हैं? ऊपर की तरफ में करते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी। आप अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं ना, तो अगर आपका सपोज करिए ये अगेंस्ट ग्रेविटी आप जब जाते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाते हैं, कोई ना कोई जोर लगा रहे होगा, आपका शरीर लगा रहा होगा, आपका शरीर कोई ना कोई जोर लगा रहा होगा ऊपर जाने की। ये जो स्ट्रेंथ है ऊपर की ओर जाने की, इसको हम कहते हैं उदान शक्ति। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं उदान शक्ति ना। उदान शक्ति
की वजह से क्या होता है कि जब ब्लड आपका नीचे गया तो नीचे तो चला गया वो, मगर ऊपर आने के लिए ऊपर नहीं आ रहा तो ऊपर तो नहीं आ पा है, रहा। क्या शक्ति हो नहीं रहा आ है ना, उदान शक्ति वीक है। रही। दूसरी बात, एक और चीज, जैसे मैंने पहले बताया स्ट्रक्चरल इशू, स्ट्रक्चरल इशू की वजह से क्या होता है, आपके वेन्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, एक तरीके से वाल्व्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं, वाल्व्स होते हैं। वो एक ही तरफ फ्लो करवाते हैं ब्लड का, ऐसे जाएगा ब्लड, फिर पीछे नहीं आ सकता। अगर सपोज कीजिए ये वीक हो गया तो रिवर्स, जिसकी वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तो स्ट्रक्चरल इशू है, ये दूसरा पार्ट आ गया इसका। पहला पार्ट उदान शक्ति कमजोर है, दूसरा व्यान शक्ति कमजोर हो गई, ठीक है ना। ये दोनों अगर हम ठीक कर दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या कोई हुआ है? ऐसे बहुत लोग हैं जिनका वेरिकोज वेन ठीक हुआ। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कोई जगह पे, किसी जगह पे आपके शरीर के अंदर कोई डिपोजिशन हो रहा है। ऐसा होता है ना लोगों का, वाटर या कहीं पे डिपॉजिट हो, ज्यादा हो गया, जम गया, है ना, ब्लड कहीं पे एक जगह इकट्ठा हो रहा है, फैट कहीं पे इकट्ठा हो रहा है, गैस कहीं पे इकट्ठा, ब्लोटिंग होती है लोगों को, इकट्ठी हो रही। अगर थोड़ा इंटरनल प्रेशर लगाएंगे तो निकल जाएगा ना, थोड़ा स्क्वीज करेंगे तो निकल जाएगा ना। हाँ या ना, इतना तो कॉमन सेंस सब में ही है ना। Yeah. थोड़ा स्क्वीज करेंगे तो निकल जाएगा। तो जब आप थोड़ा कुंभक करेंगे और उसको सही डायरेक्शन की तरफ में उसको अगर डायरेक्ट करते हैं तो ये चीज निकल जाती है। तो ये आसान है ठीक होना इन सब चीजों, लेकिन क्या है कि दवाई नहीं बनी कोई ठीक होने के लिए, नहीं, और दवाई तो बन कोई नहीं, भी नहीं है। दवाई बन भी नहीं सकते इसके लिए। तो कैसे ठीक होना है ये आपको समझ में आना चाहिए, फिर आपको भी पता चलेगा कि ये ऐसे ठीक हो सकता है। तो क्या निकल सकते हैं, 100% निकल सकते हैं इससे। दूसरी बात, अब आपने बोला, आपने स्क्वायर ब्रीदिंग किया, ध्यान से सुनिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्राणायाम। अब प्राणायाम को ब्रीदिंग के साथ में हम कनेक्ट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। प्राणायाम कुंभक में प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम का मतलब क्या होता है, when you create a equilibrium, जब अपने शरीर में आप इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज प्राणायाम। जैसे नेचुरली भी होता है, अगर आप अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करें तो 4 संध्या काल होते हैं हमारे दिन में। अर्ली मॉर्निंग व्हेन द नाइट हैज नॉट गॉन एंड डे हैज नॉट कम, जो सुबह की संध्या है, जब रात नहीं गई और दिन नहीं आया, उस टाइम पे अगर ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इनहेलेशन की लेंथ और एक्सहेलेशन की लेंथ बराबर हो जाती है। दूसरा संध्या कब आती है, दोपहर के टाइम पे, तीसरी संध्या शाम के टाइम पे, और चौथी संध्या आधी रात को। ऐसे ही साल में भी 2 संध्याएं आती है, इक्विनॉक्स, उस समय अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करें तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये बराबर होगा। चौथी चीज, आप अगर इमोशनली बहुत स्टेबल कर लें तब भी ये बराबर हो जाएगा। तो इसके बहुत तरीके हैं। तो ये तरीका जिसकी वजह से आप इक्विलिब्रियम में आए उसे प्राणायाम कहते हैं। आजकल इसको लेके बहुत ज्यादा उल जुलूल, मतलब मार्केट में या पूरे इकोसिस्टम में आ गया है। प्राणायाम हमेशा योगा या फिर कह लो मुक्ति की तरफ में डायरेक्टेड होता है, क्योंकि अब आपको अगर प्राणायाम कुछ समय तक कर लें, इक्विलिब्रियम लेके आ जाए, तो आपको संसार में सांसारिक चीजों में इंटरेस्ट हट जाएगा। तो ये हमेशा स्पिरिचुअलिटी की तरफ में इसको ले जाने के लिए किया जाता था, इसीलिए ये योग के अंडर में आता है, यानी मुक्ति के अंडर में आता है। तो जब आप बराबर करते हैं, देन यू वांट टू एक्चुअली से टू योरसेल्फ दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लाइफ नाउ। प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए और इसको ठीक से कंडक्ट कीजिए। We don't want that you go out of life without experiencing it fully. So बिना धर्म अर्थ काम के मोक्ष नहीं होता. That is a wrong approach. So what Kumbhak will do, give you a lot of health so that you can experience, your experience increases, it grows, you are fulfilled, and then there will be mukti automatically. Thank you so much. Babita ma'am, you can ask your question.
आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। Kavita ma'am, please unmute yourself. Bhargavi ma'am, you can ask. Okay, Kavita ma'am, you can ask. हाँ हाँ मैं मेरी मम्मी के बारे में बात करना चाह रही थी गुरुजी कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है और अभी वो 78 इयर्स ओल्ड है। उनके रीढ़ की हड्डी में क्रैक है, तो क्या ये करने से उनको सही हो सकता है? जब हम पेन भी कहते हैं, बहुत हाँ, जब हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस तो इसका मतलब क्या होता है? हड्डियां पोरस हो गई, हल्की हो हाँ। गई, ठीक है, हड्डियां हल्की हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस बोल रहे हैं। मगर ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है, ये तो हमने बताया नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप सबकी ऑब्जर्वेशन में ये होगा, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दुनिया में कोई भी एक इंसान है जो कि कैल्शियम खा के ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया? ऐसा कोई भी नहीं है, हाँ। ठीक है। तो हम प्रॉब्लम को इन्होंने एक उनकी बात लाइफ में डिफाइन कर रहे हैं, बहुत लेकिन किया हुआ है। जो हम प्रॉब्लम जानते ही नहीं। जब हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं तो हमें मालूम ही नहीं कि हो क्या प्रॉब्लम है। तो पहली बात, आपके शरीर का एब्जॉर्प्शन कम हो गया। तो एब्जॉर्प्शन कम कैसे होगा? अभी मैंने वेबिनार, इसी में क्वेश्चन आंसर करते समय मैंने बताया एक कि आपकी इनहेलेशन जो है वो कम हो गई ना। आप इनहेल कम कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ पोल्यूटेड है और डिविएटेड है, तो आप इनहेल कम कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब आप जूस पीते हैं, तो खींचने के लिए एब्जॉर्ब आपके शरीर की तरफ में जाए तो आप खींचते हैं ना। हाँ। उस जूस को खींचते हैं, तो आपकी खींचने की क्षमता ही कम हो गई अगर, तो आपके बॉडी का एब्जॉर्प्शन ही कम हो जाएगा। आप कितना भी कैल्शियम दो, आपका बॉडी एब्जॉर्ब करेगा ही। तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए कौन सी दवाई चाहिए? कोई भी दवाई नहीं होती, ना हो सकती है। ये आपको अपनी, ये आप देखेंगे, एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए आपको अपान पक्ष बढ़ाना पड़ेगा, अपान शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। अपान शक्ति कैसे बढ़ाएंगे? अगर किसी चीज, सांस को लेके आप रोक पाए तो आप देखेंगे उनको ऑब्जर्व करके, वो रोकने की क्षमता उनकी बहुत कम है। तो रोकने की क्षमता जैसे ही बढ़ेगी उसको अपान शक्ति कहते हैं, और उससे बॉडी का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं जिनका एचबी काउंट बहुत कम हो गया, उनका एचबी काउंट बढ़ गया, हड्डियां मजबूत हो जाती है लोगों की, जो चल नहीं पा रहे चलने लग जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? आपके शरीर की ही वो शक्ति है जिसको आपने एक प्रैक्टिस करके बढ़ा दिया, तो इससे आराम मिल जाए। अब एक और चीज है, एज हमेशा याद रखें, ध्यान रखें, एक और चीज ध्यान रखें, हमेशा जिंदा रहने की कोशिश ना करें। आपका जीवन सुंदर होना चाहिए, आपका जीवन पावरफुल होना चाहिए, मगर यह भी फिरंगी आइडिया है। किस चक्कर में पड़ गए? हमारे यहां पे हम हमेशा नहीं जीना चाहते। हमेशा जियोगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हमेशा नहीं जीना चाहते। हम अपना अच्छा काम करेंगे, अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे, बोलेंगे भैया तुम रहो खुश और हम चले। तो इस देश में हम सबसे ज्यादा इज्जत किसको देते हैं? मृत्यु को देते हैं। इफ यू कैन हैंडल डेथ, यू विल हैंडल बर्थ, अदरवाइज द बर्थ विल बिकम बैड। तो इसीलिए 1000 साल पहले इस देश में केवल एक ही देवता थे, मृत्यु के देवता, ओनली शिवा टेम्पल अक्रॉस इंडिया, बिकॉज वी अंडरस्टूड दिस इज द बेस। यही है। ये आप किस चक्करों में पड़ गए? ये फिरंगी चक्करों में पड़ गए। वो जिंदा रखना चाहते हैं अपने आप। नहीं, इस देश में ऐसा हमने नहीं किया, क्योंकि हमारे पूर्वज समझदार थे। दुनिया में इकलौता कोई समझदार देश है तो हमारा देश है, हमारे पूर्वज हैं। मगर आपको उनको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि छोटे मोटे स्ट्रेट जैकेट लॉजिक से हम बहुत गहरी चीजें नहीं समझ पाते, ठीक है ना? स्ट्रेट जैकेट लॉजिक कहते, लॉजिक 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 करके दुनिया बर्बाद कर दिया हमने, है ना? लॉजिक, स्ट्रेट जैकेट लॉजिक, लीनियर मैथमेटिक्स से एलोपैथी कुछ भी ठीक नहीं कर पा रही है। तो आपको वैदिक मैथमेटिक्स पे आना पड़ेगा, नॉन लीनियर मैथमेटिक्स पे आना पड़ेगा, ठीक है? तो आप समझ पाएंगे इसको, लाइफ को। इसीलिए हमने साइकिल बोला, हमने स्ट्रेट लाइन नहीं बोला।
हमने क्या बोला? संसार। संसार का मतलब क्या? साइक्लिकल। आप इस दुनिया में कुछ भी देख लो, कुछ भी स्ट्रेट नहीं है, सब कुछ साइक्लिकल है। तो आपको मृत्यु को बहुत सुंदर बनाना पड़ेगा। और वो कब बना पाएंगे? जब आपका एक्सपीरियंस पूरा होगा ना, तब मृत्यु सुंदर होगा। जब आप स्कूल को अच्छे से एक्सपीरियंस कर लेंगे तब कॉलेज में जाना चाहते हैं ना, वरना स्कूल में ही अटके रहना चाहेंगे। यही हमारी हालत है। वी जस्ट वांट टू क्लिंग ऑन टू लाइफ। नो, यू डोंट वांट टू प्रोग्रेस। ये अच्छी बात है। तो इसीलिए दैट इज व्हाई एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्पावर देमसेल्फ। ये जरूरी है। और ये अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि they cannot be medicine for all this. नहीं, it's just very simple to actually come out of. बुढ़ापा आ गया, कम से कम हमें इंश्योर करना चाहिए अपने बुजुर्गों के लिए कि ऐसा ना हो कि तड़पते हुए जाए। कुंभक करेंगे ना, तो अगर आप लाइफ में कुछ ले तो नहीं जा सकते अक्रॉस दिस लाइफ। एक चीज बता रहा हूं, यू विल टेक कुंभक अलोंग विद यू। अगर आज आपको इस लाइफ में ये ठीक नहीं कर पाया तो आपकी अगली लाइफ ठीक कर देगा। हालांकि दिस इज समथिंग आई शुड नॉट बी स्पीकिंग, दिस इज एसोटेरिक, आप को रिलेट नहीं कर पाएंगे। बट आई हैव अ लिवरेज ना, स्वामी लगा हुआ मेरे आगे, आई हैव अ लिवरेज टू स्पीक, कुछ ले सकता हूं मैं थोड़ा। हाँ, एक कंफ्यूजन था, जैसे हाँ। कुंभक में अपने को सांस रोकनी है तो मैं इनहेल करती हूँ जब रोक सकती हूँ, एक्सेल में नहीं रोक सकती हूँ। तो कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं ये प्रोसेस कर पाऊंगी या नहीं, कैसे ज्वाइन हो जाऊं। एक्चुअली आपको, आपका जो कमजोर पक्ष है ना, वो हम डायग्नोस करेंगे, उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं आप? वो हमारा काम है, वो आपका काम नहीं है। आप किसी भी स्थिति में हो, हमें इस दुनिया में हर एक इंसान की हेल्प करनी, वो किसी भी स्थिति में हो। हम कैंसर का प्रोग्राम भी करते हैं, लोग बेड रिडन है, उनको हम कुछ स्पेशल प्रैक्टिस देते हैं ताकि वो कम से कम बैठ पाए। जब बैठेंगे फिर उठ पाए, चल पाए, थोड़ा चलेंगे, ज्यादा चल पाए। लोग जो कीमोथेरेपी से 15-15, 2-2, 3-3 हफ्ते बेड पे पड़े रहते थे, वो 24 घंटे के अंदर बेड से निकल के अपना काम कर पा रहे हैं। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। When you are able to do something on your own, be independent, तो ये बहुत बड़ी एम्पावरमेंट है। बिना आपके एनर्जी बढ़ाए ये नहीं हो सकता। तो जीवंतता हम बढ़ाते हैं। इस जीवंतता को संस्कृत में आयुष कहते हैं। डू यू नो द वर्ड आयुर्वेदा मीन्स इंक्रीजिंग द अलाइवनेस इन योर बॉडी। इट डजंट मीन हर्ब, जड़ी बूटियां नहीं है आयुर्वेद का मतलब। आयुर्वेद का मतलब है the science to increase the aliveness in your body, because we have lost a major part of Ayurveda. Only herbs, जड़ी बूटियां बची हुई। But let me tell you, जड़ी बूटियां भी बाहर से ही खाएंगे ना, फूड भी बाहर से खाएंगे और दूसरी दवाइयां भी बाहर से खाएंगे। It can be a support only। आप अपने शरीर की जीवंतता बढ़ा दीजिए। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे आप निकल नहीं सकते। बीमारी छोड़िए, आप, आपकी लाइफ इतनी सुंदर हो सकती है जो आप सोच नहीं सकते आज के टाइम पे। जैसे मैंने बताया था कि मुझे एंकल पेन है और एज पर डॉक्टर ये ठीक नहीं हो सकता है। नहीं, वो छोड़िए, वो डॉक्टर जो है वो पूरा सेंटेंस नहीं किया ना, उसने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया। डॉक्टर को कहना चाहिए दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, उसको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं रखना चाहिए था। उसको कहना चाहिए था आई एम अ मेडिसिन एक्सपर्ट और मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता, ऐसा बोलना चाहिए था ना उसको। आपको भी समझना चाहिए था ना, ही इज अ मेडिसिन एक्सपर्ट ना, और वो कह रहा है कि नहीं ठीक हो सकता, मतलब मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता। वो भी गलत नहीं कह रहा, बट वो बीच में खा गए कुछ वर्ड्स। नहीं, सबका अपना धंधा है, सबका अपना बिजनेस है, क्यों उसको, है ना, उसको भी रोटी खानी है। मगर रोटी खाने के चक्कर में आप बर्बाद मत कर लो अपने आप। एक और क्वेश्चन लेंगे, लास्ट क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे, लास्ट लेंगे। Ilango sir, you can ask your question. Yes, I am Ilango. Thank you for the wonderful seminars. It's very informative. Thank you so much. I am 60 years old. I am born with a drop foot. Okay, my right leg
there is no control of the nervousness, and I cannot do up and down, left and right kind of a thing. So my question is, because body cells or everything is accustomed to this kind of a lifestyle, I understood the skeletal imbalance is there and more pain on the left leg because of the load on the thing. So my question is, can it be corrected because I am at this age and I have practiced my body No, to no. behave in such a way? Why do you think 60 is a No, it's lot of I age told or because, higher yeah, age? no, 60 years body is used to that habit. That is what I'm trying to tell you. Nothing more than that. Yes, it is used to tapping because what will happen is we get into certain tendencies. Correct. So what happens if pain happens somewhere? The physical pain may go, but the psychological pain remains for a long period, isn't it? But the psychological pain will not do a physical damage. Let me tell you, if you really are committed and if you are too much adamant about taking it off, you can take it off also. Okay. The psychological pain, I'm saying. So you can come out of psychological pain if you want. But physical pain is something which you will come out of. Right? Now there is a tendency how you walk. It will take a little time for the tendency to come out of that tendency. Maybe a little time, but if you don't have the problem, why you worry about tendencies? Okay. If the problem can be solved, that is what we want. If the problem can be solved, other things will be automatically taken care in due course. Maybe it will take 3 years, 4 years, 5 years to come out of that tendency. But the first thing that has to happen is the trigger point. That trigger point has to resolve. You resolve the trigger point, the rest of the things will automatically be taken care. And 60 is not a higher age or a very long age, right? Okay. You seems to be pretty fit. That's Right. right, sir. Now, I'm doing practices, etc. That's fine. My question is related to the body cells getting habituated to what I was like that. That is what. So how can it change quickly, or even by doing the 6 weeks program? Yeah, that is what the program is for. It is designed so that it changes quickly. Yeah, it is not just one thing. We are also aligning your body. We are creating a strength in that particular part. We are improving your metabolism. We are doing a lot of things. We are actually attacking the problem from a lot of points, a lot of places. Yes. It is not only that. We are also correcting your hormonal flow. We are also correcting the pituitary function. We are also correcting your nervous regeneration. So we are attacking the problem from a lot of points. Yeah. Thank you. Thank you. So there is a higher chance that you will come out faster. Faster. Okay. Because it is very much directed. Okay. It is customized. So there is a higher chance that it will come out of it faster. And you will come out of it. First 9 weeks is common group program now, sir. Only after the 10th week you do the customization to the project. Yes, 10th week is customization. Then you will do practice for 1 month more, and then you'll have to do it on your own because everything will be there with you. The videos, the written instruction, how you do, everything will be there. And you can also anytime if you have any doubt or question, you can come back and ask your question. That support group is there. Support. Yes. So but the first 9 weeks are that the thing. I'm not practicing anything specific to my issue. Okay. Yes. First 9 weeks is generic. It's everybody will learn the same thing, how to do that particular practice, and then that will be customized according to your problem. Okay. Thank you, sir, so much. Your fees is really very reasonable. I appreciate. Yeah, thank you. Thank you for joining in. आप लोगों का question, you can put your question in the chat box or in the WhatsApp group you are a part of. जिस भी WhatsApp group में है उसमें question पूछ लीजिए, आपको answer मिल जाएगा. Because the limitation of time, we will have to close now. I have to shift to some other session, right? Thank you for joining and all the best wishes for your future. Thank you so much to all the participants who have been waiting till the end, and we are very apologetic since we have not been able to take a few questions. So what you can do is you can write in the class group and we'll definitely get back to you on those questions. Till then, stay well, stay healthy. Signing off, Rachna Bothra. Bye.